بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی ایم کے جلسے کی۔ ڈی ڈی خان میں پی ٹی ایم کا جلسہ، کارکنوں کا عوامی نمائندوں کا پرتپاک استقبال۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کارکنوں کا لہو گرمایا۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب کی بھی جلسے میں شرکت۔ جمال لغاری نے شہباز شریف کو سندھی ٹوپی، جبکہ سابق ایم پی علیم شاہ نے شہباز شریف کو سندھی ادرک پہنائی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ڈی ڈی خان میں پی ٹی ایم نے پاور شو کیا، کارکنوں کا عوامی نمائندوں کا پرتپاک استقبال۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کارکنوں کا لہو گرمایا۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نے جلسے میں شرکت کی۔ جمال لغاری نے شہباز شریف کو سندھی ٹوپی، جبکہ سابق ایم پی اے علیم شاہ نے شہباز شریف کو سندھی ادرک پہنائی۔ ملک کا نظام نیب کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، جو ایک آمر کا دیا ہوا فلسفہ ہے۔ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا، عمران خان کو سی پیک کا نام کرنے کا ایجنڈا بھی دیا گیا ہے۔ ڈی ڈی خان میں جلسے سے خطاب میں سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر خوب تنقید کے نشتر برسائے۔ کہتے ہیں ایشیا کا کوئی ملک پاکستان سے تجارت کو تیار نہیں، روزگار کی امیدیں دلا کر 30 لاکھ عوام کو بے روزگار کر دیا گیا۔ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا، عمران خان کو سی پیک کو ناکام کرنے کا ایجنڈا بھی دیا گیا۔ انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکالا ہے۔ آج پاکستان سالانہ ترقیاتی تخمینے کے حوالے سے صفر سے نیچے چلا گیا ہے۔ امید دلائی تھی نوجوان کو، وہاں 30 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا اور نوکریوں سے نکالا گیا ہے۔ تم ملک کا نظام نیب کے ذریعے چلا رہے ہو، وہ چور ہے، وہ چور ہے، اس کے خلاف کیس کرو، اس کے خلاف کیس کرو۔ نیب کا جو فلسفہ ہے وہ ایک آمر کا دیا ہوا فلسفہ ہے۔ نیب جب فعال ہوتا ہے سمجھو کہ وہ آمریت کی علامت ہے، اور اس ملک پر آج بھی آمرانہ حکومت ہے۔ عمران خان، تمہیں اس ایجنڈے کے تحت لایا گیا تھا کہ تم نے کشمیر کو بیچنا ہے۔ پورا ایشیا معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی ملک تجارت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ مل کر مارچ کریں گے اور حکومت کو نکالیں گے۔ ڈی ڈی خان جلسے سے خطاب میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے حکمرانوں کا خبردار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت میں آ کر اگر وہ جنوبی پنجاب کو سینٹرل پنجاب سے بہتر نہ بنائیں تو ان کا نام شہباز شریف نہیں۔ کہتے ہیں عمران خان نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی، نون لیگ کی حکومت نے غریب کسانوں میں اربوں روپے تقسیم کیے۔ اس وقت کھاد کی قیمت 1200 روپے تھی، آج 2400 روپے ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے ایسا کہا ہے، انہوں نے حکمرانوں کو خبردار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں حکومت میں آ کر اگر وہ جنوبی پنجاب کو سینٹرل پنجاب سے بہتر نہ بنائیں تو ان کا نام شہباز شریف نہیں۔ یہ بتانے آیا ہوں کہ جب مصیبت آئی تھی تو نواز شریف اور یہ خادم آپ کے ساتھ قدم قدم آپ کے ساتھ ملا رہے تھے۔ غریب کسانوں کو اربوں روپے تقسیم کیے، 40,000 روپیہ فی گھر کنبہ ہم نے تقسیم کیا۔ اور یاد کرو اس وقت کھاد کی قیمت 1200 روپے تھی، آج کتنی ہے؟ 2400 روپے۔ عمران نیازی، یہ ایک سمندر عوام کا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو چکا۔ 3.25 سال، 3.5 سال تک عام آدمی کی زندگی آپ نے اجیرن کر دی، اور مہنگائی اور غربت نے عوام کی کمر توڑ دی۔ اور میں آپ کو آج گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سن لو میری بات، کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو میں سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب سے
बेहतर ना करूं तो मेरा नाम मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की दरबार सखी सरवर पर हाजिरी। अवैस अहमद खान लगारी समेत दीगर लीगी रहनुमा भी हमरा थे। सूबाई सदर ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। दरगाह मुंतज़मीन की जानिब से राना सनाउल्लाह की दस्तार बंदी की गई। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का सखी सरवर पहुंचने पर ज़िलाई नायब सदर मलिक गुलाम यासिन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। राना सनाउल्लाह ने मज़ार हज़रत सखी सरवर पर चादर चढ़ाई। उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए खुसूसी दुआ कराई। इसके बाद लीगी रहनुमाओं को बलोची पगड़ी और चादर भी पहनाई गई। ज़िलाई नायब सदर नून लीग डीडी खान मलिक गुलाम यासिन ने उनको इलाके के मसाइल और दरगाह से मुतालिक तफसीलन ब्रीफ किया, जिस पर सूबाई सदर राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई महरूमियों का अजाला करेंगे। दूसरी जानिब डीडी खान में मुशीर सेहत पंजाब हनीफ खान पताफी और MPA सरदार अहमद अली दरेशक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आज डेरा गाजी खान की गयूर अवाम ने PDM का जो डेरा गाजी खान में जलसा था, मैं इसे जलसा नहीं कहूँगा बल्कि जलसी कहूँगा, उसको मुकम्मल तौर पर यकसर मुस्तरद कर दिया। जो अभी तक मेरी इतलात हैं 5 से 6 हज़ार लोग थे। 11 जमातों का ये जलसा था। हमने डेरा गाजी खान की इंतज़ामिया ने इनको ऑफ़र की थी कि आप स्टेडियम में ये जलसा करें, आप किसी बड़े ग्राउंड में करें, क्योंकि बड़ी जमातों के आपकी जमातों के कैदीन आ रहे हैं। लेकिन इनको खौफ था, इनको पता था कि डेरा गाजी खान की आवाम PTI से मोहब्बत करती है, डेरा गाजी खान की आवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है और ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान की आवाम CM उस्मान बुज़दार से मोहब्बत करती है। मैं तो समझता हूं कि अवैस लगारी को आज ये बताना चाहिए था शहबाज शरीफ को कि 30 साल इक़्तिदार में जो मियां साहिबान पंजाब की जो तरक्की सिर्फ लाहौर की तरक्की को पंजाब की तरक्की समझते थे, उस्मान बुज़दार ने पहली दफ़ा है कि लाहौर से निकल कर पूरे पंजाब में हर अजला में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिए। वापस आते हैं डेरा गाजी खान में, तो डेरा गाजी खान में CM उस्मान बुज़दार साहब की कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है। गाजी यूनिवर्सिटी जो बनी तो पिछले दौर में थी, लेकिन उसमें मुस्तकिल VC भी तैनात नहीं था। 2.5 बिलियन के फंड से गाजी यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब की इस वक्त बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन रही है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो मीर चाकर यूनिवर्सिटी, डेरा गाजी खान डिवीजन में 6 यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। इसके अलावा डेरा गाजी खान में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। इतने प्रोजेक्ट अगर मैं गिनाने बैठूं तो घंटे लग जाएंगे। डेरा गाजी खान की तरक्की थी जो CM उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में ये सबसे पसमानदा और आखिरी डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त CM साहब की क़ियादत में डेरा गाजी खान नहीं, जनूबी पंजाब नहीं, बल्कि मैं तो CM साहब को मोहसिन जनूबी पंजाब कहता हूँ कि उनकी क़ियादत में पूरा जनूबी पंजाब तरक्की करे। और पहली दफ़ा है कि 190 बिलियन रुपए के, जो पिछली गवर्नमेंट, जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट, जनूबी 190 बिलियन रुपए के जनूबी पंजाब को फंड दिए गए थे। यही वजह थी कि आज डेरा गाजी खान की आवाम ने इन चोरों के टोले का जो जलसा था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। कुछ मदरसों के तलबा आए हुए थे और मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आप आईनी शहद हैं, आपने कवरेज भी की है। मुकम्मल तौर पर यह नाकाम जलसा था। 11 जमातों का जलसा था, 11,000 लोग भी वो इस जलसे में नहीं वो बुला सके। तो मैं अपने PTI कारकुनान को, खासतौर पर डेरा गाजी खान के PTI के कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और डेरा गाजी खान के लोगों को मैं मोहब्बतों का मशकूर हूँ कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब साहब उस्मान बुज़दार पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और हम पे एतमाद किया और आज के जलसे को मुकम्मल मुस्तरद किया और उसे नाकाम किया। रुख करेंगे महंगाई का। भावलपुर में शहर-ए-नोश की कीमतों में इजाफा जारी है। अब सब्जियों की कीमत भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। मजीद देखिए महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। भावलपुर में सब्जियों की कीमत भी आवाम की पहुंच से कोसों दूर है। आए रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। गुर्बत की चक्की में पिसती आवाम का कहना था कि रोजाना खाने पीने वाली अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं सब्जी लेने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे तो रेट ही बड़े अजीब हैं।
बहुत महंगाई हुई बड़ी। सब्जियां सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हैं, जो शहरियों के लिए ज्यादा अजियत का बाइस बन रहा है। अवाम का कहना था कि सब्ज मंडी में भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जबकि बाजारों में ये 2 गुना कीमत पर फरोख्त की जाती हैं। इतना वाल भी कुछ रेट सही है, बाहर तो बहुत ज्यादा महंगी है। उथा के रसा को जड़ी 100 रुपए वाली चीज है ना सही, इथा के रसा को 20 रुपए मिल वेंदी है, 3 गुना ज्यादा है। असा तो साई मार्केट कोई रेट इथा कर कंट्रोल है नहीं, कोई अपना प्राइस इंदा कोई चेक करना लगा नहीं, हर बंदे दे अपना रेट है। ई दुकान ते अलहदा है तो उते अगले ते अलहदा है। मटर 20 रुपए इजाफे के बाद 350 रुपए फी किलो, अदरक 300 रुपए, लहसुन 265 रुपए और हरी मिर्च 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पीडीएम खुशाब के ज़रिए तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जमीयत उलमा इस्लाम खुशाब के ज़िलई अमीर मौलाना अब्दुल्ला अहमद और ज़िलई सदर मुस्लिम लीग नून साबिक सेनेटर डॉक्टर गौस नियाजी ने रैली की क़यादत की। खुशाब में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए साबिक सेनेटर और ज़िलई सदर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर गौस खान नियाजी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है। पेट्रोल, गैस और अशिया खुनोज की आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम पर महंगाई के बम गिरा दिए, जिससे अवाम खुदकुशी पर मजबूर हो चुके। ज़िलई अमीर JUI मौलाना अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि हुक्मरान पाकिस्तान और अवाम दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं। जो हुक्मरान 3.5 सालों में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके, वो आइंदा भी अवाम को कुछ नहीं देंगे। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। अलीपुर में मुस्लिम लीग नून की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका ने हाथों और गलों में जंजीरें डाले, गदा रेड़ी पर बैठकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। अलीपुर में लीगी वर्कर्स की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जो शाह फैसल चौक से शुरू होकर इकबाल चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली साबिक तहसील जनरल सेक्रेटरी रशीद खान गुपांग एडवोकेट की सरबराही में निकाली गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ गिलानी की कबीरवाला में आमद हुई। उन्होंने साबिक वाइस चेयरमैन महर जफर अहमद हराज की रस्म कुलखानी में शिरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ गिलानी ने मरहूम जफर अहमद हराज के फर्जंद की दस्तारबंदी कराई और दुआ भी कराई। इस मौका पर सैयद यूसुफ गिलानी ने महर जफर हराज को खराज अकीदत भी पेश किया। सज्जादा नशीन दरबार हजरत मूसा पाक शहीद सैयद अबू अल हसन गिलानी और साहबजादा सुल्तान अहमद समेत दीगर भी उनके हमराह थे। बात करेंगे गैस्ट्रो की। साफ पानी कदम फराहमी और नाकिस ग़िज़ा। मुल्तान के 256 शहरी गैस्ट्रो का शिकार हो गए। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में दर्जनों मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में 80, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 99, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 45 और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 32 मरीज रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब में कोरोना के 11 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 3 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बिहाड़ी रहीम खान में 2 अफराद कोविड का शिकार हो गए। बहावलपुर, बहावलनगर, लैया और खानेवाल में 1-1 केसेस रिपोर्ट हुआ है। जनूबी पंजाब में कोविड के नए मजीद 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3 केसेस मुल्तान में देखने को मिले हैं। मुल्तान में रवा हफ्ते रिपोर्ट होने वाले सबसे ये कम केसेस हैं। कुल मरीजों की तादाद मुल्तान में 321 हो गई है। बिहाड़ी में 2, कुल मरीजों की तादाद 17। लोधरा में रवा सीजन में मरीजों की तादाद 6 हो गई। खानेवाल में नया मरीज रिपोर्ट होने के बाद मजमूई तादाद 12 हो गई। बहावलपुर में 1 नया मरीज रिपोर्ट होने से कुल मरीजों की तादाद 18 हो गई। रहीम खान में 2 नए केसेस रिपोर्ट होने से कुल मरीजों की तादाद 44 हो गई। महकमे नहर की नहली और हरुणाबाद की 6R नहर में 7 दिनों में दूसरी बार शिगाफ पड़ गया है। 50 से 70 फीट चौड़ा शिगाफ से हजारों एकड़ ज़रई जमीन ज़ेरे आब आ गई है। सैलाबी सूरत हाल से तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीनों और किसानों ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। हरुणाबाद की 6R नहर में शिगाफ पड़ने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र किसानों को शदीद परेशानी का सामना रहा। इलाका मकीनों का कहना था कि शिकस्ता हाल नहर एक ही हफ्ते में दूसरी बार और एक ही साल में कई बार टूट चुकी। ऐसे में दूसरी बार शिगाफ पड़ने से तमाम फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं। कई घंटे गुजरने के बावजूद महकमे नहर की टीमें पहुंची और ना ही शिगाफ को पुर किया गया।
شہر اولیا میں تجاوزات کی بھرمار ہو گئی ہے۔ ریڑھی بانوں نے بیچ بازار ڈیرے جما لیے ہیں۔ تجاوزات کے باعث سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی ہے۔ لوگوں کے لیے سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے سہیب گرمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر اولیا ملتان میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار، ریڑھی بانوں نے بازاروں کے بیچ جما لیے ہیں ڈیرے۔ تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ شہریوں کو پیدل چلنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہتے ہیں انتظامیہ کوئی حل نکالے تاکہ چلنے میں آسانی ہو سکے۔ یہاں پہ آئے روز یہ ریڑھیوں نے تنگ کیا ہوا ہے، ٹریفک ہر وقت رکی رہتی ہے، اور یہاں پہ جب بھی کوئی ایمرجنسی کوئی آ جائے تو یہ ریڑھیوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہوتا ہے کہ ٹریفک ہر وقت جام ہو جاتی ہے۔ بوسن روڈ کو انتظامیہ کشادہ نہیں کر رہی، سڑک پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں اور شہری گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، جبکہ ریڑھی بان بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ کہتے ہیں اس دور میں روزی کمانا مشکل ہے، انتظامیہ ٹھیلے لگانے کے لیے مناسب جگہ کا انتظام کر دے، ورنہ تو وہ سڑک پر ہی ریڑیاں لگائیں گے۔ ہم نے ریڑھی سے ہی ہم نے اپنے روزگار کمانا ہے، بچوں کا رزق کمانا ہے۔ سر ہمیں کوئی ایسی جگہ ہو جو ہم کھڑے ہو جائیں، اب جگہ نہیں ہے کوئی، اس لیے ہم ادھر سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہیں، اپنی روزی بچوں کی کر رہے ہیں۔ بڑھتی آبادی اور تجاوزات کی بھرمار کے باعث بوسن روڈ سمیت شہر کی کئی سڑکوں پر سفر مشکل ہو چکا ہے۔ شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ اب اس حوالے سے انتظامیہ پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان۔ ملتان میں نوبہار نہر روڈ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سڑک کنارے جا بجا گڑے حادثات کا سبب بننے لگے۔ شہری پریشان، انتظامیہ سے روڈ فوری مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہر اولیا میں نوبہار روڈ خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ سڑک کنارے بڑے بڑے گڑھوں کے باعث آئے روز حادثات پیش آنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ روڈ کی خستہ حالی کے باعث اکثر اوقات رات کے وقت حادثات پیش آتے ہیں۔ آئے دن یہی کام ہوتے، حادثات ہوتے رہتے ہیں، سمجھے نا، چوٹ لگ جاتی ہے، لوگوں آ جاتے ہیں 112 والے، دیکھ کے چلے، وہ تو علاج کر کے چلے جاتے ہیں، جو مریض لے جانے والا لے جاتے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد ہے یہ توجہ نہیں کر رہے روڈ پہ۔ آئے روز حادثات کے پیش نظر نوبہار روڈ پر بڑی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ انتظامیہ خستہ حال روڈ کو فوری مرمت کرائے۔ بچے ساتھ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ڈر لگتا کہ ٹریفک ہوتا ہے، زیادہ رش ہوتا ہے، رش کی وجہ سے بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ روڈ کو ریپیئر کر لے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق نوبہار روڈ کا مرمتی کام جاری ہے، جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ رحیمیان خان میں ایم این اے چودھری جاوید اقبال بڑائچ اور ایم پی اے چودھری آصف مجید نے تھلی روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ تھلی روڈ کی تعمیر عوام کا درینام مطالبہ تھا، جس کو پورا کر رہے ہیں۔ عامر بھٹی کی رپورٹ۔ رحیمیان خان میں حکومت نے ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا۔ عوام کے مطالبے پر تھلی روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ پی ٹی آئی ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے چودھری آصف مجید تھلی روڈ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے پہنچے تو علاقہ مکینوں نے ڈھول کی تھاپ اور پھول نچھاور کر کے استقبال کیا۔ ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ کا کہنا تھا کہ 22 ملین کی لاگت سے 2300 فٹ لمبی سڑک کا تعمیراتی کام 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ 15-20 سالہ یہ مسئلہ تھا، کسی نے آج تک اس پہ توجہ نہیں دی۔ ماشاءاللہ اس حکومت نے آ کے، چودھری آصف مجید صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پنجاب کے کپتان ہیں عثمان بزدار صاحب، ان کی مہربانی سے آج یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ ایم پی اے چودھری آصف مجید نے کہا کہ تھلی روڈ تا چوک پٹھانستان پختہ روڈ تعمیر کر کے عوام کے مواصلاتی مسائل حل کریں گے۔ آج اس علاقے کا بلکہ شہر کا 15 سالہ درینہ مطالبہ پورا کیا گیا ہے۔ یہ تھلی روڈ جو تھی یہ پورے شہر کی مین روڈ تھی اور پچھلے 15 سال سے اس میں کھڈے پڑے ہوئے تھے، بیچارے شہری تنگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے آج اس کا افتتاح کیا ہے اور انشاءاللہ یہ سڑک 1-1.5 ماہ میں کارپیٹ روڈ بن جائے گی۔ اراکین اسمبلی نے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد عوام کی دیگر مسائل بھی سنے اور فوری حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ وقت تو بدلا لیکن واٹر ورکس روڈ ملتان کے لینئر پارک کی قسمت نہیں بدلی۔ پی ایچ اے نے لینئر پارک کو ٹریفک تھیم بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن عرصے بعد بھی اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے اعلان کے باوجود لینئر پارک کو ٹریفک تھیم پارک میں
तब्दील नहीं किया जा सका। ट्रैफिक थीम पार्क के जरिए आवाम को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम की जानी थी। पार्क में नशे के आदी अफराद के डेरे हैं, जिसकी वजह से शहरियों ने भी पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। दूसरी जानिब बहावलपुर सब्जी मंडी में पीने के पानी का मसला हल हो गया। रोहे की खबर पर डीसी ने एक्शन ले लिया और पीने के पानी के लिए नया इलेक्ट्रिक कूलर लगवा दिया। महमूद जहीर की रिपोर्ट। बहावलपुर सब्जी मंडी में पीने के पानी का मसला हल हो गया। सब्जी मंडी में इससे पहले आवाम के लिए पीने का साफ पानी नापैद था। इस बारे रोही ने खबर देकर इंतजामिया की तवज्जो दिलाई तो इसे होश आ गया और डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी में पानी का एक नया इलेक्ट्रिक कूलर लगवा दिया। हाँ नहीं, पिछले दफा डिप्टी कमिश्नर आया था, इन्होंने ना शिकायत की थी, चलो ये शिकायत पूरी हो गई है, इन्होंने लगा दी रोही न्यूज़ वालों ने। इनकी मेहरबानी है, बंदों के लिए सूरत पेश की है। पानी मिल जाता है मंडी में, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पानी लगा दिया। बहावलपुर सब्जी मंडी में पीने के पानी का मसला हल होने पर शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि रोही ने अहम मसले पर इंतजामिया की तवज्जो दिलाई, इससे इनका बड़ा मसला हल हो गया। पहले दूर से जाकर पीने का पानी लाना पड़ता था। पानी मिल रहा है, अब वो ठंडा पानी मिल रहा है, ठंडा यक। तो पहले पानी की क्या सूरत हाल थी? पहले मशीनें खराब हो गई थी, अब मशीनें नहीं लेके आए हैं मशीनें यहाँ पर। चले, अब आप खुश हैं? हाँ जी, मेहरबानी आपकी। रोही जनूबी पंजाब की आवाम की आवाज बन चुका है। रोही का मकसद अवामी मसाइल की निशानदही करके इन्हें हल करवाना है, जिसे अवाम की तरफ से बहुत पिजराई मिलती है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में निशात बॉयज हाई स्कूल लोधी कॉलोनी ब्रांच का एजाज नर्सरी से 8वीं जमात तक के नताइज का ऐलान कर दिया गया। शानदार नताइज आने पर बच्चे और वालिदैन खुश दिखाई दिए। निशात बॉयज हाई स्कूल लोधी कॉलोनी ब्रांच में नर्सरी से 8वीं जमात तक के नताइज का ऐलान कर दिया गया। बेहतरीन नताइज आने पर प्रिंसिपल शफकत हयात ने खुशी का इजहार किया और कामयाबी का सेहरा स्कूल सीईओ को दिया। इनका कहना था कि जब तक किसी इदारे की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ सकता। सीईओ की बदौलत इनके इदारे के असातिज़ा और स्टाफ बच्चों की पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। बच्चों के बेहतरीन नताइज आने पर फख्र है। कामयाबी का एक अहम पहलू वो ये भी है कि हमारे जितने भी जो कैंपसेस हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस हैं और उसके अंदर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसके अंदर बच्चों को वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जिनकी वजह से पोजीशन आती है। पोजीशन लेने वाले तलबा का कहना था कि इनकी कामयाबी वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। स्कूल में अच्छी पढ़ाई के बायस आज वो बेहतरीन नताइज लाने में कामयाब हुए हैं। स्कूल की जानिब से तहाइफ मिलने पर तलबा की खुशी दीदनी थी। आज मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, ये मेरे पेरेंट्स और टीचर की वजह से है। आज मैं ज़्यादा खुश हूँ और मैं ज़्यादा खुश हूँ, मुझे गिफ्ट मिले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे पेरेंट्स और टीचर का नतीजा है और मैं घर जाकर बहुत एंजॉय करूँगा। साल भर की मेहनत के बेहतरीन नताइज आने पर बच्चों के वालिदैन भी खुश नजर आए। इनका कहना था कि निशात स्कूल में अच्छी पढ़ाई की बदौलत ही इनके बच्चे कामयाब हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। उधर मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान में सरसब्ज किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च सैयद फ़खर इमाम और सूबाई वज़ीर सैयद हुसैन जहानिया गर्देसी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत की। अहवाल बताएंगे अली व्यास। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में सजा सरसब्ज किसान कन्वेंशन, जिसमें पंजाब और दीगर सूबों के काश्तकारों को जदीद तर्ज से गंदम की काश्त करके ज़्यादा पैदावार हासिल करने बारे आगाही फराहम की। वाइस चांसलर ज़रिए यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली ने वज़रा को ब्रीफिंग दी। सैयद फ़खर इमाम का कन्वेंशन से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान की ज़राअत में बेहतरी आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने 8 अरब रुपए की मालियत की सब्सिडी मुख्तस कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़राअत में ख़ास तौर पर पिछले 12 महीने में आप देख रहे होंगे काफ़ी तब्दीली आ गई है कि हमारे जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पे गंदम, जिसमें 27.5 मिलियन टन पिछले साल आई है और इस साल हमने टारगेट 28.9 मिलियन टन रखा है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देसी ने यूनिवर्सिटी में जदीद तरीके से गंदम की बिजाई भी की। इनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कपास की पैदावार बेहतरीन हुई, जबकि गन्ने की 9 मिलियन टन पैदावार हासिल होगी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कपास जो एक डाइंग क्रॉप थी, अल्लाह की मेहरबानी से उसको हमने रिवाइव कर लिया है और इस साल बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं कपास के। डीन सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग ने कहा कि किसान कन्वेंशन जैसे प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि अपने किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक से मुतारिफ करवाया जा सके।
सरसब्ज कन्वेंशन में महकमा ज़राअत, निजी कंपनियों और किसानों समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अली रियाज, मुल्तान।